सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। I will say the 12th shloka of 12th chapter, which is a summary of the entire teaching. Shreyo hi jnanam abhyasat श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागः ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम्. त्यागात् शान्ति अनन्तरम्। So Bhagavan says that the journey, which is spiritual or adhyatmic journey, starts with abhyas and ends in shanti, and that is shanti anantaram, means there is no uninterrupted shanti. It's like the example given in our shastra is when you drop the oil from one vessel to another, the stream which is uninterrupted stream, एकदम straight होती है बिल्कुल and continuous होती है, and that kind of shanti. So the example is given that कि जो oil की stream होती है, then it drops from one vessel to another, that kind of shanti. So but it starts with abhyas and ends in shanti. That's the teaching. And that's why we are here. उसके बीच में सब ये हमारा स्वाध्याय सत्संग सब आ जाएगा. Then when we'll say the 7th shloka of 2nd chapter, which is Arjun's prarthana, which is our prarthana too. कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः कार्पण्यदोषो उपहत् स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयः स्यात् ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। So Arjuna is saying, Bhagavan, I am deluded, so now I give up. Pehle the Arjun gave some logic and all those things, but he realized that no, it doesn't work. So he says that I give up, I surrender to you. Shadi mam tvam prapannam. मेरी बुद्धि को आप you guide because I am surrendering to you. Shishyasteham, and I am your disciple. And nit shreyasyat nishchitam bruhitan. Tell me what is shreyas for me. And shreyas in this context, in Bhagavad Gita context, is the right choice. And that's what Arjun had this issue, right? That right, he's not able to make the right decision. So he wanted to run away. That this hinsa is the sannyas is better than hinsa, and that's a very profound statement. If that statement, if you take that statement in a general sense, that's perfectly right. Because who will tell go and do the hinsa and why not take sannyas? So he was very right, but he was just saying in an escape mode, भागने के चक्कर में. That's the whole teaching started. That's why he's confused. Should I? So then he said, what is Shreyas? So now in this context, even Yuddha is Shreyas because it is a Dharma Yuddha. So that is the teaching. And that's why Bhagavad Gita is very clear in that. It took its birth in the battlefield with making the right choice. So Shreyas, that is Shreyas. And then in life also we get many times we come to a point where we say, should I do this or should I do this? And then what is shreyas to be done? Yeah, of course there are two options, but what is best in this situation where my swadharma is involved, where the whole society is involved, where my values are involved, and then you make the choice. So it is not about युद्ध करना है या नहीं करना है या
ये सर्जरी करनी है नहीं करनी है. इफ यू साइन अप एज ए डॉक्टर टू प्रोटेक्ट द लाइफ, यू हैव टू डू सर्जरी. उस समय आप ये थोड़ी बोलेंगे कि अब मुझे नहीं, अब मैं आई कैन नॉट डू द सर्जरी और आई कैन नॉट डू हिंसा. दैट इज नॉट हिंसा. So that's what the whole Arjun's question and the entire Bhagavad Gita is teaching, to tell Arjun what is Shreyas, and to us also. So we are on 10th chapter, and 10th chapter is called Vibhuti Yoga. And yes, last time we saw that Bhagavan says that the this the whoever is steadfast in worship. So this, now as we saw that from 7th chapter to 12th chapter, it's all about Bhagavan, not just Bhagavan himself. Whenever we say Bhagavan, there एक कहावत हमारे स्वामी जी used to say that if there is no Bhakt, there is no Bhagavan. If there is no Bhakt, there is no Bhagavan. So Bhakt is required for Bhagavan to be there. So when we are saying that from 7th chapter to 12th chapter, Bhagavan is going to talk about all, mostly Bhagavan, Brahman, various names. The Bhakt is involved in that by default. ये सारा भक्त के लिए ही हो रहा है, भगवान को क्या करना है. So it is all, when we say Vibhuti, the Bhagavan is telling his Vibhuti and Vibhuti of divinity. But for at the end of this chapter, even in fact today's Bhagavan is saying that the one who is steadfast and devoted to me, Bhagavan is saying, I bestow Buddhi Yoga. Now, very nice term Bhagavan tossed, Buddhi Yoga. ऐसे कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, बहुत सारे योग होते हैं आजकल. तो राज योग है, और आजकल तो अलग तरह के, बट गीता के हिसाब से उसमें बुद्धि योग भी एक टर्म भगवान लेके आए. So basically buddhi is related to, and this is very close to the people like us who are in academics. Mostly we are in academics or profession. So buddhi has a very important role to play. So Bhagavan says, I'll give the wisdom. The buddhi yoga means the vivek, or the wisdom of discrimination. Because when you have to decide Shreyas, you need buddhi. You have to make a right choice. But in this case, he's not saying for material gain buddhi. Bhagavad Gita says the buddhi to attain that satya, that anand, Satchidanand जिसे भगवान का नाम भी दिया है. So that anand or param shanti, uninterrupted peace, that is also same thing. Anand and shanti, same thing. And Bhagavan says, I dwell in their intellect, जो लोग devoted हैं, and satat yukta naam, constantly engaged, I give them buddhi yoga, and I stay in their buddhi to remove the ignorance. We'll see that. Very nice metaphor Bhagavan has given. Deep का भी पूरे 7-8 next 5-6 श्लोक बहुत अच्छी तरह समझाया. So Bhagavan says, and that's what he said in the 9th chapter, right? Ananyas chintayanto yo mam upasate tesham abhiyuktanam yogakshema vahami. पहले भी उन्होंने कहा था कि जो लोग constantly they are engaged, mean कोई दूसरा नहीं सोचते हैं. I am there always in their mind or focus. I yogakshema vahami. I help them, not I do them. देखिए वेरी क्लियर हमें करना चाहिए. लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है भगवान कुछ करेंगे. पहला मैसेज भगवत गीता का ये है कि मैं तो सारथी हूं अर्जुन के. आई मीन आई एम जस्ट द चैरियटर. यू आर द वॉरियर. यू आर गोइंग टू फाइट. आई कैन हेल्प यू. So Yogakshem, Bhagavan says, he doesn't say that I'll do that. We have to read that. I'll help you in that. I'll help you in yoga. Yoga means acquire what you don't have. And Kshem means I'll help you to protect what you possess or you acquire. So that's a trick Bhagavan will teach. Not do that. That's what the goal of Guru or teacher or Acharya is, to teach us, not to do for us. We have to do our job. So that's what Bhagavan says. So in the beginning of the chapter, Bhagavan says, Bhuya eva mahabaho shruno me paramam vachah yatte ham priyamanaya vakshami vatakamyama. हर चैप्टर के पहले, या नॉट ओनली चैप्टर तो हमारे लोगों ने डिसाइड किए, लेकिन whenever in Bhagavad Gita Arjun asks a question and Bhagavan start teaching, he says this, like whatever I am teaching you, कहीं बोलते हैं you to give you the moksha, to overcome, for you to overcome the problem. Here is saying vaksham hit kamya, tere for your hit, for your welfare, I'm going to tell you what? The knowledge. Every time he tells what? Same जो अर्जुन ने पूछा था, श्रेयस. How do you decide श्रेयस?
you have to have that awareness, that gyan, that comprehension of the situation and make the right choice. So that's what he says. Because you are my Priya, I'll do that. So last time I think we finished up to fifth, and we'll go to sixth chapter. So up fourth and fifth, mein Bhagwan talked a lot of attributes which will come in the 16th chapter. For example, he says, Satya, Damah, Kshamaha, Sukham, all these things, they originate in me, or in fact, they are also born out of me. So not only the physical world, which will come later, he's talking about the internal world which we have. We call it antahkaran, or mind, we can say simple. All these qualities are born inside, in the mind, like truth, ahimsa, damah, kshama. They are all from me. So with that, we'll go to sixth shlok. Sixth shlok of 10th chapter. So, but last week, and good, we are on Buddhi Yoga. Buddhi Yoga, this chapter, I mean, this part can be called Buddhi Yoga. And Buddhi is related to, so last week we had Saraswati Puja, because Vasant Panchami was there on Sunday. And we did Saraswati Puja in our Vidya Mandir Bal Vihar. Many temples do that, especially in Bal Vihar. बच्चों को हम लोग ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं, हमें पता हो ना हो, लेकिन हम लोग सोचते बच्चों को तो सिखाई दें कि क्या करना है. मैं तो बच्चों कई साल से कर रहा हूँ यार. पेरेंट छोड़ के, अरे सरस्वती पूजा में तो आप भी बैठ जाओ. बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं सीख रहा हूँ, किस लिए सीख रहा हूँ. बच्चा सीखता है और घर जाके देखता है कि मैंने जो सीखा वो तो कुछ और हो रहा है, तो देन वी क्रिएट मोर कंफ्यूजन. सो बेटर नॉट टू ब्रिंग children to Sunday school or Bal Vihar if we cannot be engaged as parent also. So सरस्वती पूजा में मेरे पेरेंट्स, हम तो मंदिर में लाइक पेरेंट्स भी आते हैं, इज गुड, बट मेनी प्लेसेस आई सीन दैट पेरेंट्स ड्रॉप एंड गो. नो, दिस फॉर ऑल. सो लास्ट वीक और सरस्वती पूजा, सो बच्चों को, आई मीन आई आस्क टिपिकली द क्वेश्चन कि व्हाट इज सरस्वती पूजा, व्हाट इज लाइक, दैट इज वसंत पंचमी इज सपोज टू बी birth of Saraswati ji. Or the birth to kya hai, lekin yeah, there are stories around. But just as our rishis were smart, they made those, decided some days for us reminder. सरस्वती जी को तो क्या जन्म लेना हर साल. हमारे ही बर्थडे से कुछ नहीं होता हमारे जीवन में. हर साल बर्थडे, और हर साल बर्थडे का गाना गाते हैं, और वहीं के वहीं नेक्स्ट ईयर. सो लेकिन फिर भी चलो सरस्वती जी की पूजा करते हैं, तो रिमाइंडर है. सो हमारे ऋषि वेरी स्मार्ट. जैसे कि एवरी ईयर करो यार, तो कुछ किसी दिन तो शायद क्लिक करेगा. तो लास्ट वीक हम लोगों ने सरस्वती पूजा करी, तो मैंने बच्चों को पूछा कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, सरस्वती से क्या होगा. अब ये सब मटेरियलिस्टिक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के बच्चे हैं, तो एक दो कुछ बच्चे पकड़ लेते हैं. आई सीन दैट दे गेट इट राइट. तो मैंने पूछा क्या करोगे सरस्वती पूजा से. और सरस्वती विल विद्या से क्या करोगे, गेट ए गुड जॉब. दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड आंसर आवर किड्स गिव, and I don't blame them. It is we have injected in them. मतलब छोटे I was surprised that they were kids like in 10-12 साल के होंगे, not even middle school, and they say we will get a better job by doing Saraswati Puja. And I was kind of surprised. But anyway, that's a role in Vidya Mandir, our role to tell them what is right. So I don't blame them, because that's the environment is right. तो फिर मैंने उनको बताया कि, and which is typically, I will just take few minutes, कि हमारे देवी के 3 फॉर्म हैं, सरस्वती, दुर्गा एंड लक्ष्मी. So एक ही देवी, लेकिन we have 3 forms, and that's those 3 powers we need, right? We need Lakshmi, like which is a material wealth or prosperity, to make this world better place, not to just enjoy or misuse. And then with Durga, which is the strength. Both we need physical and mental strength. But then what? We have prosperity, we have strength. How to use it? There you need buddhi. So there is a story, बच्चों के साथ भी I shared them. कि story was that कि एक बार ऐसे 3 देवियां थी. उन्होंने एक भक्त को बोला कि भाई तुम बहुत पूजा करते हो, तो हम 3 आ गए, लेकिन ऑप्शन एक ही है, you can choose one of us. We 3 will not live in your house. एक ही आ सकती है अंदर. अब तुमने पूजा कर ली तो हम आ गए. तो वो थोड़ा स्मार्ट सोचने लगा. लक्ष्मी जी बोली कि भाई मैं आ जाती हूँ, तुम्हें तो पैसे की तो सबको, एवरीबॉडी नीड्स मनी एंड यू ऑल्सो नीड, तो आई शुड गेट द प्रेफरेंस. तो उसने सोचा बात तो ठीक ही है कि भाई पैसे की तो सबको जरूरत है, लेकिन थोड़ा
Okay, okay, let me think. सरस्वती. Durga ji said कि no, just because you need strength, right? कुछ आजकल तो physical, mental strength चाहिए तो take me, मैं आ जाती हूँ तुम्हारे घर में. तो उसने फिर कुछ बोला नहीं, वो कन्विंस करते रहे. उसने सोचा थोड़ा, फिर उसने कहा कि सरस्वती जी आप आ जाओ मेरे यहाँ. तो दुर्गा जी लक्ष्मी बोले, अरे सरस्वती बोले रहा हमारा क्या हो, मतलब हम पैसा भी चाहिए. तो उसने कहा कि मैंने ऐसा सुना है अपने गुरुओं से कि अगर विद्या होती है तो लक्ष्मी और धन भी, बल भी आ जाता है. इसलिए विद्या पहला बल है, इसलिए आप आ जाइए. तो लक्ष्मी, जब सरस्वती जी आ गई तो दुर्गा जी लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक पीछे. उन्होंने कहा कि हम तीनों अलग रह ही नहीं सकते, अगर सरस्वती है तो हम उसके पीछे ही रहेंगे. सो दैट्स द स्टोरी आई टोल्ड यू, बट दैट स्टोरी तीनों इज अलग नहीं रहते, दुर्गा को बोलना है तीनों आ जाते. so that story is very true for all of us. And this chapter is like, this part is buddhi yoga. So Bhagwan is saying कि मैं बुद्धि योग तुझे दूंगा, क्योंकि बुद्धि अगर होगी तो बाकी चीजें सही कर पाओगे. So that's why this particular part is buddhi yoga. So we'll continue with the sixth shloka, right? Sixth shloka of 10th chapter. महर्षय सप्त पूर्वे महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः. येषां लोक इमाः प्रजा. और हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन और 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, यह मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं कि जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है. The 7 great sages, the ancient 4 and the Manus, with their being in me, were born of mind. From them are these creatures of the world. Yeah, so this श्लोक can have very detailed description, but typically हम लोग मानते हैं कि we are all descendant of सप्तऋषिस. सप्तऋषि उसमें वशिष्ठ है, जामदग्नि है, और ऊपर देखते हैं तो दिखते भी हैं वो कॉन्स्टलेशन जो है, जो we see सप्तऋषि. So we are all descendant of सप्तऋषि. That's why हमारा गोत्र भी होता है very detailed, but उससे ज्यादा हमें डिस्क्रिप्शन. एंड द सेकंड भगवान इज सेइंग कि जो मनु है, इसलिए हम लोग मनवंतर बोलते हैं सभी हमारे सभी ट्रेडिशन में. तो मनु और सप्तऋषि भी मुझसे हुए हैं, पहले भी बोल चुके हैं कि कोई मुझे जानता नहीं क्योंकि मैं सबसे पहले हूँ. भगवान इज सेइंग दैट मीन्स द बॉटम लाइन इज दैट यू आर ऑल डिसेंडेंट ऑफ भगवान. दैट्स इट. So that's what. So because everything is created by Bhagwan. And then we saw in the 7th chapter when Bhagwan says apara prakriti, ki means the Panchabhut, the 5 elements, they are also made, they are my manifestation basically, they are made of me. और हमने देखा भी है कि आकाश अग्नि अग्नि, वायु वायु वायु, पृथ्वी पृथिव्या अग्नि जल आप, और आप पृथिव्या पृथिव्य, औषधि औषधेय मनुष्य. वैसे से आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी में औषधि, औषधि में vegetation, and man is made out of vegetation. So everything is made of Bhagwan. That's what he wants to say. But here specifically he is giving example of Saptarishi and Manu. So but that's more detail people have, but I think for us it's itna kafi hai. So then we'll go to the next shlok, because our interest is in 10th 11th shlok जहाँ हमारे लिए teaching है. बाकी तो it's like more history and academics. So 7th shlok. एतां विभूतिं योग च एतां विभूतिं योगं च मय यो वेत्ति तत्त्वतः मय यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः युज्यते नात्र संशयः. जो पुरुष इस मेरी परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है. इसमें कुछ भी संशय नहीं है. और तत्व से जानने में टिप्पणी है, जो कुछ दृश्य मात्र संसार है सो सब भगवान की माया है, और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है. यह जानना ही तत्व से जानना है. He who knows in reality the supreme manifestation and my yoga, he becomes established in unshakable union. There is no doubt about it.
Yeah, so this word Bhagwan is used in Bhagavad Gita many times. Tattva se janna, tattvataha, many times in Bhagavad Gita. And he keeps reminding, Arjun को भी remind करते हैं, हमें भी, कि it should not be a mechanical or conditional process. I mean, reading also, I can read Bhagavad Gita, अच्छा भी लगता है. I mean, whenever you read these kind of things, अच्छा, you feel good. But it becomes mechanical many times. So Bhagwan Tattvata, when he says, not only Bhagavad Gita, all our Shastra says the same thing. जानना जो है, even when we go, हम लोग मान लीजिए हायर स्टडीज जब मैनेजमेंट स्कूल जाते हैं या लाइक हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, तो इफ आई टेक मैनेजमेंट इन MBA in finance, so they want to make sure that I'm really getting the finance or not. Otherwise, I won't get the admission, because MCAT का जो एग्जाम होता है, like when I did MBA, काउंसलर ने बुलाया, and he wanted to make sure that I do understand finance. If I go for MBA in finance or MBA in HR or PhD in some subject, do you really get it or not? Otherwise, they won't give you. So same चीज भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करनी है, दैट हायर लेवल पे जाना है, तत्वतः जानना पड़ेगा. So there are, for example, 3 levels of a devotee. तत्वतः बात से याद आया. So one devotee, and this is Vibhuti. Everything is भगवान. वो बोल रहे हैं कि मुझे जानता है कि मैं सब कुछ अविकम्पेन, मीन्स 100% convinced, nothing, not shaking consciousness or shaking understanding. एक ही सब जानता है कि सब कुछ भगवान है. So there are like 3 levels of devotee. Devotee number 1, which says भगवान is the creator. जो टिप स्टैंडर्ड ज्यादातर वही है, मेजॉरिटी सब बोल देते हैं कि all different traditions have the same thing. भगवान is the creator. So that means there is a भगवान and there is a creation. So जैसे हम मेजॉरिटी लोग मंदिर जाते हैं, विष्णु जी हैं, वो बनाते हैं, शिव जी ये करते हैं, तो we have that शिव जी and the दुनिया or the world. So this is number 1. उसमें भगवान is a creator, and then creator has an address, वो कहाँ स्वर्ग में रहते हैं, या जो भी बहुत सारे नाम देते हैं, and then वो क्या करते हैं, तो दुनिया को चलाते हैं, दुनिया को then प्रलय करते हैं शिव जी. So that is भगवान. That is then the little mature devotee which goes to higher level. That's what we are talking about. तत्व से जानना means maturity level should increase. So second level पे जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, छोटे बच्चों को तो obviously आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, भगवान है, कृष्ण जी हैं, ये कर, and we have to rise right from there. So second level पे मतलब भगवान becomes this world. So first is भगवान creates, उसमें that like there is a goldsmith, there is a gold, and there is an ornament. There are 3 distinct, you see that. Next stage में जाते हैं कि oh, ornament is gold only. तो ये क्रिएशन ही भगवान है, जो भगवान ने अपरा प्रकृति बोला है 7th चैप्टर में, कि मैं ही हूं सब कुछ. ये 5 एलिमेंट भी मैं ही हूं. अपरा मीन्स जो नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों ने सूर्य को भगवान बोल दिया कि चलो भगवान दिखते नहीं, तो सूर्य इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ भगवान. So now Bhagwan's manifestation. So that means भगवान becomes this creation. थोड़ा हायर लेवल आया. पहले तो अलग अलग दिख रहे थे, अपने कहने ठीक है, अभी तो सूर्य उपासना भी चलेगी, गंगा की पूजा भी चलेगी अगर कृष्ण की नहीं है. So now we say कि भगवान is a manifestation or becomes the prakriti. Then there is a third level, which is the higher level, which is तत्वतः. वो एक स्वामी जी को किसी ने पूछा, जो एनलाइटन स्वामी जी को, कि हैव यू सीन गॉड, एंड ही सेज आई सी नथिंग बट गॉड. वॉट एवर आई सी इज जस्ट गॉड. दैट इज तत्वतः. अब ये भी नहीं कि सूर्य, क्योंकि द मोमेंट वी से कि भगवान सूर्य बन गए, देयर इज स्टिल अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग, देयर इज अ चेंज हैपनिंग इन दैट सत्ता. that सत्ता में जिसको हम लोग बोलते हैं, this being, जो एक divinity है, it is transforming into Surya. That means there is still something happening. Now the third stage is nothing is happening, just everything, whatever you see, वो सूर्य हो नहीं रहे हैं, सूर्य ही हैं. अभी सेकेंड स्टेज में सूर्य हो रहे थे, मैनिफेस्ट हो रहे थे. भगवान नाउ बिकम्स सूर्य. नाउ थर्ड स्टेज में everything is भगवान, is
apparently, और जो भी दिखता है जो कुछ है वो भगवान है उसमें, फिर वो रिवर हो चाहे ट्री हो चाहे स्टार हो, एवरीथिंग, एंड दैट इज व्हाट भगवान इज सेइंग, तत्वतः जो मुझे जानता है। सो 3 लेवल, सो आवर गोल इज टू रीच टू 3rd लेवल, वेयर इट इज, जिसको हमने निर्गुण ब्रह्म भी बोला है हमारे शास्त्रों में, कई नाम दिए, ब्रह्मन नाम दिया है, और थोड़ा सा अगर बहुत ज्यादा है तो ओम सिंबल दिया है, बट निर्गुण ब्रह्म बोला है। तो दैट भगवान से कि वो जब जानता है एक ही तब वो मुझे, अत्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं कि युज्यते मीन्स ही, अभी युज्यते में बिकॉज लैंग्वेज हैज लिमिटेशन, युज्यते मीन्स ज्वाइनिंग समथिंग, बट नथिंग इज बीइंग ज्वाइंड। हम ब्रह्मास्मि व्हेन वी से तत्वमसि, देयर इज नथिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट हैपनिंग, यू रियलाइज दैट आई, मैं ही भगवान हूं, मतलब जब सब कुछ भगवान है तो मैं भी भगवान ही हूं। सो दैट रियलाइजेशन, दैट अनुभव doesn't have any transformation happening, there is no kriya happening there, it is all anubhav, it is all feeling. जैसे many of us, when we first time when we become parent, or when I remember when I was few year old and my brother, younger brother came, oh, there is a feeling that, oh, I have become elder brother or I have become a parent, that anubhav, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो अनुभव है, लाइक यू जस्ट, देयर इज अ जॉय इन, और देयर इज अ फीलिंग, सेम थिंग। एक दिन लगेगा कि मैं भी भगवान ही हूँ, लाइक दैट इज भगवान से तत्वता। सो विल दैट विल गो टू 8th श्लोक, राइट। अहम सर्वस्य प्रभो, अहम सर्वस्य प्रभो, अहम सर्वस्य प्रभवो, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते मां, बुधा भाव समन्विताः। बुधा भाव समन्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। I am the origin of all. From me everything evolves. Understanding thus, the wise worship me, endowed with devotion. या सो नाउ सेम श्लोक, थोड़ा सा इसमें ऐड किया, जैसे तड़का लगाते हैं ना, कि अभी कड़ी एकदम प्लेन थी, थोड़ा सा तड़का लगाया तो उस कड़ी में जरा स्वाद ज्यादा आ गया, यहाँ उन्होंने तड़का लगाया है, तड़का लगाया भाव समन्विता, श्रद्धा और भक्ति। पहले श्लोक में इतने कहा तत्व से, लेकिन तत्व में भी जो तड़का है वो श्रद्धा और भक्ति का ही है, दैट डिवोशन, मतलब एक वो ऐसा नहीं है कि ड्राई हो जाए। सो कई बार लोग बोलते हैं भगवत गीता इज सिर्फ ज्ञानियों के लिए ड्राई, क्या बात करते हैं, इट्स सच अ लाइक अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। भगवान कितनी बार बाद में बार बार बोलते हैं कि श्रद्धा और भक्ति से ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर कोई कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं कि ये ज्ञान का है या ये भक्ति है, श्रद्धा, सब एक साथ है। यहाँ बोला उन्होंने मत्वा भाव समन्विता, भाव समन्विता मीन्स बुधा यूज किया है अगेन, बुद्धिमानी से। बुद्धिमानी का मतलब इट्स नॉट जस्ट एकेडमिक बुद्धिमानी, बुद्धिमानी में समझना। तो भगवान कहते हैं कि जो ऐसे मुझे भजते हैं वो मुझे तत्व से जानते हैं। बड़ा सिंपल है। देयर यूज्ड टू बी अ कांग्रेगेशन, और कहीं कुछ लेक्चर चलता था सीरीज, and that was all in Sanskrit and English. Scholars were there and they're like discussing and everybody is talking on some topic, Vedant होगा जो भी होगा, there are scholars, but it was either about English or Sanskrit. तो वहाँ क्या होता था, लास्ट रो में old lady used to come and sit every day, and the organizer realized that कि लगता तो नहीं कि she is all others are educated like us, कि जाएंगे सुनेंगे कुछ भाषण, मतलब कुछ इंग्लिश संस्कृत में हो रहा है, कुछ डिस्कशन हो रहा है। That lady was very ordinary looking, and one organizer asked after few days, like 4 or 5 days, she is coming regularly, sitting the whole time. She said, Mataji, I mean, can I ask you something? बोली हाँ पूछो बेटा क्या है? तो आपको इंग्लिश बोले, मेरे को कोई इंग्लिश नहीं आती। बोले आपको इंग्लिश नहीं आती? बोले बिल्कुल कुछ नहीं आती। आप बोले मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं, बट यू कम एवरी डे एंड सिट हियर द होल टाइम, यहाँ तो बड़े बड़े डिस्कशन। तो उसने बोला मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि यहाँ भगवान की बात होती है, इसलिए मैं रोज आती हूँ। क्या बात है, भाव समन्विता, भाव से जो मेरे पास आएगा वो बस पहुंच जाएगा। सो दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग।
कि सारा खेल भाव का है. इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो. संस्कृत है, आपको आती है नहीं आती है, बड़े लॉजिकल, ऐसा कुछ नहीं है. भाव आने चाहिए. So with that we'll go to the 9th chapter. 9th, 10th, 11th are beautiful. There is a lot of teaching also in these, right? So 9th श्लोक. मच्चित्ता मद्गत प्राणा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तुष्यन्ति च रमन्ति च। और वे निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं. और प्राणों को अर्पण करने की टिप्पणी में लिखा है, मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है उनका नाम है मद्गत प्राण. Those with mind in me, with pranas, that is life's activities absorbed in me, enlightening one another and always speaking of me, they're contented and delighted. See, हम ये जो, I mean, we'll go word. There are beautiful words in this. Very nice. हम जो ये कर रहे हैं ना, ये जो सत्संग करते हैं, exactly what भगवान is saying here. ये जो हम करते हैं, जो भी सत्संग करते हैं, साथ बैठते हैं, स्वाध्याय करते हैं, एग्जैक्टली. सो मत चित्ता मीन्स माइंड इज फोकस्ड ऑन मी. तो पहली कंडीशन है किसी भी चीज को सीखने की, क्योंकि आपका माइंड तो, लेकिन अभी वी हैव टू गो बैक टू 14th चैप्टर कि फिजिकली यू कैन नॉट से माइंड विल बी फिक्स. देयर इज नो, दिस इज नॉट अ फियर हियर. जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो सर्टिफिकेशन हम लोग सब करते हैं, राइट? So there is a fear कि सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो जॉब में से निकाल देंगे, या you required to be board certified or whatever. We all have different profession. So there is a fear. So we'll do the study and चलो पास हो गया, ठीक है, हो गया काम. उसमें that is this not भगवान is saying. यहाँ पर चित्त, mind focused on me is not, there is no gain here. There is no physical gain. वो एक आनंद है. तो उसके लिए एक ही रास्ता है, 14th chapter सत्वगुण. There is no other way. There is no other practice required. सत्वगुण बढ़ाते चले जाइए. अब रजोगुण और तमोगुण कम करना है, सत्वगुण बढ़ाना है, मच्चित्ता हो जाएगा. मच्चित्ता करना कुछ नहीं है. He is saying here, but what he is, भगवान means is that कि वो चित्त ऐसा हो जाना चाहिए जो मुझ में लग जाए. मद्गत प्राणा, all the senses. प्राण means every, the entire. जैसे कहते हैं ना, oh my life is in this work, right? पूरे, there is a story we all read, right? We have heard many times कि वो the शिष्य asked Guruji that what do you mean by mat prana? मतलब पूरे प्राण से भगवान को चाहूँ, ये क्या मतलब? उन्होंने कहा बताएंगे सुबह. So they used to go for like for the bath in the river. So Guruji took him to the river. He said कि कल रात को क्वेश्चन पूछा था ना, उसका भी आंसर मिलेगा. मुझे पता नहीं अभी नहाने रिवर में क्या आंसर मिलेगा. He took a dip. So Guruji उसको दबा दिए नीचे और निकल नहीं दे रहा हूँ. Then he was like dying to like breathe. Finally he came out with all the power. And Guruji said कि क्या हुआ? उसने कहा क्या हुआ? अरे मैं मर रहा था. बोले क्या विचार आ रहे थे? बोले कोई विचार नहीं आ रहा था, एक ही विचार आ रहा था, बाहर निकलो किस तरीके से. आपने पूरी ताकत दबा रखा था. क्या विचार था? The only thought that I should just be out of water to breathe. That's it. पूरे प्राण से बाहर निकल आया तो इतनी ताकत लगाई. जिस दिन पूरे प्राण से भगवान याद करेगा, दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग. एंड फिर भगवान आगे कहते हैं परस्परम बोधयंत. जो हम लोग परस्परम मींस म्यूचुअल, बोधयंत में डिस्कशन. अभी जो हम करते हैं भगवद गीता स्वाध्याय में नहीं है. दिस इज व्हाट भगवान इज सेइंग. जो भक्त है ये परस्पर. एंड देन कथयंत, कथा करते हैं भगवान की कथा. इसलिए हमारे यहाँ सबसे पॉपुलर है कथा. कोई मुरारी बाबू की कथा हो रही है, कोई डोंगरे महाराज की कथा. लॉट ऑफ कथाकार. It's all katha. If you go for 7 days of Bhagavad, there's nothing but और कथा. रामायण में जाइए तो कथा ही है और कुछ नहीं. All the stories, but there are messages within the story. So भगवान से कथयंत, कथा मेरे नाम का कथन करते हो, तो मेरी कथा करते हो, या भगवान की जो भी है अलग अलग तरीके से. तुष्यंति means they are satisfied
they feel fulfilled and ramanti che, उसमें आनंद लेते हैं. We have to revel in that, right? भोगरतो वा योगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम. तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं भोग रतो वा योग रतो वा, आप चाहे भोग कर लो, मतलब मजा कर लो, या योग कर लो, डजंट मैटर, राइट? भोग रतो वा योग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, अटैचमेंट हो चाहे डिटैचमेंट हो, ये सब साधना है, राइट? संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका मन भगवान में लगता है, मत चित्ता मत प्राणा, सत्व गुण के माध्यम से, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम चित्तम नंदति नंदति नंदति, 3 बार बोला ना, नंदति 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 है. नंद मीन्स आनंद, आनंद आनंद और आनंद उसी को मिलता है. दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग, रमन्ति. जैसे इसलिए हमने तो भगवान राम का नाम ही है योगिना हृदयेशे रमन्ति इति रामा, जो योगियों के हृदय में, जो भक्तों के हृदय में रहते हैं वो राम रहते हैं, मीन्स वो उनके हृदय को खुश करते हैं. रमन्ति इति राम, जो खुश, जो सो दैट्स व्हाट भगवान से कि ये जो भक्त हैं ये मेरे चर्चा करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं. लेकिन चर्चा आगे ऊपर हो रहा है भाव समन्विता, श्रद्धा भक्ति से. इट कैन नॉट बी मैकेनिकल. उधर इज दिस लेडी, वो भक्त हैं, उनके हस्बैंड भी दोनों भक्त हैं, मंदिर जाते हैं, बट दिस गाय इज अ साइंटिस्ट, केमिस्ट और केमिस्ट्री साइंटिस्ट. उस लेडी ने उसको बोला कि तुम कभी, मेरे को कभी कोई तकलीफ होती है, मैं आई क्राई समटाइम, आई हैव टीयर्स इन माय आईज, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम इट? मैं कभी रोती हूँ, कुछ होता है. सोचने लगा, उसने कहा कि यू नो आई सी योर टीयर्स. तो बोले फिर क्या तुम सोचते हो? बोले मैं सोचता हूँ कि ये H2O है और इसके साथ NaCl है, पानी है और नमक है, क्योंकि वो साइंटिस्ट है, ये मैकेनिकल है. तो उसने बोला अरे तुम्हें भाव भी है कि नहीं, मैं रोती क्यों? क्योंकि रोने के पीछे भाव है, रोने के पीछे पानी और नमक नहीं है. एंड दैट्स व्हाट वी डू. तो हम लोगों की जो भक्ति है, जो मंदिर जाना है, ये बहुत मैकेनिकल हो जाता है. So we are bogged, and that's the problem. These days, a lot of young people are kind of turned off, and they're dejected, and sometimes they feel like the questioning, because it has become mechanical. So उनको वो joy नहीं मिलता है, and if they don't get the joy, they are going to run away from it. जब तक छोटे बच्चे से, मेरा तो बड़ा अनुभव है, like I have been teaching Valvihar for almost 35 years, 40 years. So there maybe 3 or 4 generations have gone through that. अभी मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ मेरे को दादाजी बोलते हैं. इनफैक्ट हमारे बालविहार में तो they all come, they started with दादाजी, because it's like that, right? So I have seen that कि जब छोटे होते हैं तो उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है, like they'll come to मंदिर और घंटी बजाएंगे. जैसे ही they go to high school and college, they just run away, because वो कन्विक्शन नहीं, वो आनंद नहीं आता है. इसलिए हमारे लक्ष्मण जी बहुत अच्छा काम करते हैं, अभी है नहीं शायद, आज कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, बड़ा बहुत अच्छा काम करते हैं, वो जो भजन वाला काम है उनका. एंड लक्ष्मण जी एंड आई वर्क वेरी टुगेदर, वेरी हार्मोनियसली, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट. बट वी हैव टू ग्रेजुएट देम. खाली उनको नचवाना या मजीरा बजाना ही नहीं है. वी हैव टू इनकलकेट भक्ति इन देम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर जाके दिल रीड, अदरवाइज दे जस्ट. सो दैट्स व्हाट भगवान इज सेइंग कि रमन्ति, उसमें आनंद भी आना चाहिए, सिर्फ मैकेनिकल नहीं होना चाहिए. So we'll go to 10th श्लोक, which is 10th and 11th, pretty solid message there, right? तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं तं तेन येन मामुपयान्ति ते. येन मामुपयान्ति ते. उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं कि जिससे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं. To those ever steadfast, worshipping me with love, I give the Buddhi Yoga by which they come to me. See now, Buddhi Yoga, it is again like as I said, भगवान बुद्धि इसलिए दे रहे हैं कि
not to be used just for material. See, if the buddhi is given and buddhi is used for 14th chapter, I love 14th chapter. If buddhi is used with rajogun and tamogun, Bin Laden was very smart. Very smart. Lekin, what is the use of that smartest buddhi? Yes, sir. It was tamogun. There are many people, majority of us have rajogun, high amount of rajogun, and we are all intelligent people. We all have buddhi. हम सबको बुद्धि है. लेकिन our buddhi is used, consumed by rajogun. So we are, of course, I mean, we are successful in that sense. We are all good. Lekin that buddhi is used by rajogun. The fuel of buddhi becomes fuel of rajogun. Then we are more in the sansar. वो जैसे वो एक हमारे स्वामी जी गुरु जी बोलते हैं, वो प्रवचन देते थे तो वन यंग गाय वाज देयर, उन्होंने कहा चलो कुछ एंगेज कर देते हैं यार बच्चों को, हम लोग भी मंदिर में कि चलो कुछ टाइप करो, कुछ करो, कुछ. तो उन्होंने बोला ओके, यू व्हाई डोंट यू लाइक when I type on computer what I say, so it can be a script also, the lecture. And he typed. So wherever he said that renunciation word has come, कभी बोलते हैं संन्यास, renunciation is sannyas. So many times during his lecture, renunciation word came because he was talking about sannyas or something, Bhagavad Gita. अब this guy is a young boy, उसको renunciation पता ही नहीं था word. अब वो सुनता था कुछ, जब वो लेक्चर टाइप होके आया तो हर जगह लिखा होता रिम्यूनरेशन, रिनंसिएशन का, क्योंकि उसको तो वही पैसे ही अभी रजोगुण वाले को ही सुनाई देगा. तो दैट इज द प्रॉब्लम कि बुद्धि तो थी लेकिन रजोगुण की वजह से बुद्धि विल बी एंगेज इन रजोगुण. सो भगवान सेज कि सत्व गुण अगर होगा तो बुद्धि योग भगवान से ददामी, उस बुद्धि योग से माम उपयांति, मेरे पास आने का रास्ता. मेरे पास में आनंद, भगवान इज नॉट, देयर इज नो फिजिकल भगवान के पास जाना है. जो आनंद है, जो हम त्यागा शांति अनंतरम श्लोक में बोलते हैं, दैट बुद्धि, इफ बुद्धि इज मिक्स्ड विद सत्व गुण, देन बुद्धि विल ट्रांसेंड, हेल्प अस ट्रांसेंड सत्व गुण. एंड सत्व गुण को ट्रांसेंड करने के बाद ही आनंद आता है. सत्व गुण में भी थोड़ा रजोगुण रहता है तो प्रॉब्लम होती है. एंड दैट इज द रूल. सो भगवान सेज, सो बुद्धि योग को लोग ज्ञान योग, बहुत सारे ट्रांसलेशन है, पीपल कॉल इट ज्ञान योग और मेनी ways people, some scholars says. But one thing we need to, satat yukta, Bhagwan use ke satat yukta means always engaged, constantly keeping in up. See, look at this, who is saying, who is telling Arjun to finish the war? ये सब बोलने के बाद भगवान नहीं बोल रहे हैं कि निकल लो, you have to finish. So a lot of people have this confusion. भगवद गीता पढ़ते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि त्याग कर दो, तो no, nowhere he is saying you're deviating from your duty. जो स्वधर्म है वो तो पूरा कर, स्वधर्म पूरा करना with बुद्धि योग. वाह, that those people become महात्मा, right? Those people become the ज्ञानी. So he is never saying कि you run away. वो say सतत युक्ता नाम means जो constantly मेरे में लगे हुए हैं, प्रीति पूर्वकम. प्रीति में अगेन भक्ति आ गई, उसमें एक डिवोशन आ गया कि प्यार से भगवान का नाम लेना, मजबूरी से नहीं किया. अरे वो आज, अरे यार आज तो एकादशी है, लोग बहुत दुखी हो जाते हैं. हमारे लोग, कई लोग मिलते हैं शाम को, एकादशी होती है ना, शाम तक उनको बात करो तो बहुत दुखी हो जाते हैं. अरे आज एकादशी है, थक गए एकादशी करते हुए शाम तक. कुछ कहा, अरे एकादशी शाम को तो आनंद बढ़ता चला जाना चाहिए, एकादशी करी है मैंने, व्रत किया है, ऐसा होना चाहिए. शाम तक जाते थे एकादशी, बिकॉज सो प्रीति, क्योंकि प्रेम नहीं था. एंड वी ऑल नो दैट either our sibling or friend or someone who we love, or children, unconditional, when we do something for them, there is no pain, there is a joy in spite of giving something. Many of us have realized that if our younger brother, sister, or our children, if I am eating something or he or she, they ask, with joy we offer. And when we see that person is eating, we feel all more joy. प्रीति पूर्वक. तो भगवान कह रहे हैं प्रीति पूर्वकम भजता, मेरे को जो भजते हैं ऐसे लोगों को बुद्धि योग में देता हूं, उनकी बुद्धि को आई हेल्प मोर. एंड सो व्हाट से दे मां उपयांति टू रीच मी, मुझे प्राप्त हो जाए. सो विद दैट वील रीड 11th श्लोक आल्सो, व्हिच इज कंटिन्यूएशन ऑफ तेषाम एव अनुकंपार्थम,
तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम अज्ञानजनम तमः अहं ज्ञानजनं तमः नाशयामि आत्म आत्मभावस्थः नाशयाम्यास्तमभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। और हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूं। Out of mere compassion for them dwelling as self, I dispel the darkness born of ignorance by the shining lamp of wisdom. So it is continuation, right? Now they're same again. So he has used, but he says anukampa. Anukampa means compassion, and it is two-way street, right? भगवान ने पहले भी श्लोक में 7th 8th चैप्टर में बोला है कि द वे यू वर्शिप मी आई डू द सेम। तो अनुकंपा पहले श्लोक में बोला प्रीति पूर्वकम, बिकॉज यू लव मी। लव मीन्स करुणा, कंपैशन मीन्स करुणा। तो भगवान से रहे कि आई हैव करुणा टुवर्ड्स यू टू, एंड आउट ऑफ दैट करुणा मैं स्वयं अहम आत्मभावस्थ। आत्मभावस्थ मीन्स I dwell in your intellect or mind, whatever various or हृदय। हृदय means there is no हृदय, right? There is no heart में तो भगवान को हम सब जानते हैं, भी लोग साइंस वाले लोग हैं। And I dwell in your mind. When just imagine when, and Bhagwan is nothing but Satya Murti. Bhagwan is embodiment of Satya. Satya मेरे अंदर अगर आ जाए, if Satya is in me, which is the highest form of Sattva, then I'm going to be thinking right. I'll be always be delighted. I'll always be happy. That's what Bhagwan says. And Bhagwan is kind of a light, and a very good, very nice metaphor Bhagwan is used here. Like Agyanajam Tamah Bhasvata. Bhasvata means light, Prakash. Jnana Deepen, like a light of the knowledge, lamp of the knowledge in your heart. Just imagine, मतलब इसको कल्पना करें सीन को आंख बंद करके कि एक गाना भी है बहुत प्यारा सा, इसकी पूरी लाइन नहीं याद नहीं थी, तो है को याद होगा कि जैसे मंदिर में लो दिए की, छुपा लो दिल में यूं प्यार अपना, जैसे मंदिर में लो। वो बड़ा अच्छा गाना है। मतलब बॉटम लाइन है कि आपके दिल के अंदर प्रेम की एक दिया जल जाए तो कितना आनंद होता है। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर, आई विल बी इन योर माइंड और हार्ट एज अ ज्ञान दीपेन, द लाइट ऑफ द लैम्प, द ज्ञान का नॉलेज विच विल डिस्पेल द अज्ञान। अर्जुन नष्टो मोह, लाइक ही सेज कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। दैट मीन्स आई एम डिल्यूडेड। द डिल्यूजन इज इग्नोरेंस, अज्ञान। अब वेरी सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है कमरे में एंड देयर इज अ डार्कनेस एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट, यू आर स्ट्रगलिंग, एंड ऑल ऑफ सडन somebody switch on the light as, oh, here it is. That's it. तो हमारे अंदर ही, ऐसा कहते ही हमारे यहाँ कि मेरे अंदर ही वो आनंद है, मेरे अंदर ही वो खुशी है। हमारे एक प्रार्थना है सुबह सुबह हम लोग करते हैं, शंकराचार्य जी की है। उसमें उस सुबह जब उठते हैं तो the प्रार्थना says that the Satchidanand that is within me, there is nothing outside. The first प्रार्थना in the morning you get up, तो संस्कृत में, but the English is that the Satchidanand is within me. सच्चिद आनंद मम गतिम, मेरी गति मतलब मेरे अंदर जो डेस्टिनेशन हो मेरे अंदर ही है सच्चिदानंद का, मुझे बाहर नहीं जाना। एंड दैट प्रार्थना यू स्टार्ट द डे, सो देयर इज नथिंग आउटसाइड, सो ओनली थिंग द लाइट इज नॉट देयर, तो दैट लाइट इज कॉल्ड विवेक। एंड दैट्स व्हाट बुद्धि योग भगवान ने बोला था कि मैं आई विल गिव यू दैट विवेक। दैट विवेक इज द की, राइट? वंस यू हैव विवेक एंड यू आर एबल टू सी दिस। तो अभी कल मेरे को किसी ने, एक मित्र है हमारे, वो प्रयागराज गए, विल स्टॉप इन फ्यू मिनट्स। शी कॉल्ड मी फ्रॉम देयर, शी से संजय जी मैं आई एम इन प्रयागराज, यस्टरडे शी कॉल्ड मी। वो शायद सुनती भी होंगी, सुनेगी बाद में कभी। तो शी सेड कि आपसे 2 मिनट बात करनी थी, मैं प्रयागराज में हूं तो मैं क्या करूं।
मैंने कहा देखिए मेरे से आपने मैं आई वाज सपोज टू बी इन प्रयागराज टुडे टू, बट बिकॉज ऑफ माय मदर दिस ट्रिप इज कैंसल्ड। बिकॉज हम पहले चला गया तो मैं आज, नहीं तो आज मेरे को भी प्रयागराज में होना था, वहां पर एक मीटिंग थी। एनीवे शी आस्क्ड मी कि मैं प्रयागराज में हूँ, तो आई नो व्हाई शी इज आस्किंग मी, शी इज अ वेरी डिवोटेड पर्सन। उस कुछ ऐसा जानना चाह रही थी कि मैं क्या करूं, यहाँ इतने लोग हैं, सब चल रहा है, गाना बजाना भक्ति भक्ति। तो मैंने उनको बोला कि आपने कॉल ही किया तो मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रयागराज में जितने भी 3 दिन आप हैं, पहली चीज तो आप मौन रखिए। मौन से आई एम नॉट सेइंग जस्ट द वर्बल मौन, विचारों को भी थमा दीजिए, क्योंकि वहां पर कुछ अच्छा दिखेगा, कुछ खराब दिखेगा। कोई साधु आपको कुछ पीता दिख जाएगा, कोई साधु आपको कुछ गलत काम करता दिख जाएगा, कोई जगह कचरा होगा, कोई जगह गवर्नमेंट के काम अच्छे नहीं। ऑल दीज थिंग्स विल यू विल सी, न्यूज में भी आएगा। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट। सिर्फ वहां पर एक डिविनिटी है, जो लोगों की श्रद्धा है, जिसकी वजह से लोग वहां आए। मनी आते हैं एंड देर आर इनविजिबल। ये बड़े बड़े साधु जरूर नहीं कि वो टेंट लगे हैं, वही साधु, बहुत सारे ऐसे साधु वहां आते हैं कुंभ में, जिनका कुछ नहीं होता, वो साधु मस्त है। ट्राई टू सी दैट डिविनिटी, बिकॉज इफ यू वेस्ट योर एनर्जी कि यहाँ कितने लोग हैं, गवर्नमेंट का ठीक नहीं, ये नहीं, ठंडा है गर्म है, यू विल वेस्ट योर 3 days। जस्ट स्टॉप एवरीथिंग। मौन से मतलब विचारों पर मौन। जस्ट जस्ट सी द डिविनिटी, दैट्स इट। डोंट इवन decide, don't conclude anything, don't analyze anything. That is the purpose of going to Prayagraj, and that is Bhagwan is saying ज्ञान दीपेन। क्योंकि वो जब दीप जल जाता है तो ये सब फालतू की चीजें जल जाती हैं, लाइक द बर्न। ये जितने विकार हैं, जिसको हम लोग षड रिपु भी बोलते हैं, 6 enemies, काम क्रोध मद मोह लोभ, these are all in mind, everything is in mind। बट ये जब ज्ञान दीपक जलता है, that तेज आता है, they'll just burn, and once they are burned you have a clean mind, सत्व गुण और गुणातीत भाव जो। So that's why भगवान कहते नाशयामी अज्ञान जन या नाशयामी। So we'll just say one story and then stop here। when the स्वामी जी got enlightened, तो किसी ने उनके पास जाके पूछा कि आपको ये क्या हो गया आफ्टर यू गॉट एनलाइटनमेंट, हाउ डू यू सी दिस संसार एंड संसार है और आत्मा है, या मोक्ष है या संसार है। ऐसे देयर आर 2 things ओनली, वन इज आत्मा एंड शरीर, राइट? शरीर इज संसार, आत्मा इज बियॉन्ड संसार। सो व्हाट इज योर, हाउ डू यू सी दीज थिंग्स नाउ? So he gave the example which is very famous in our Vedanta. That example is Rajju Sarpavat. Very famous Shankaracharya. Rajju Sarpavat means Rajju means rope, Sarp means the snake. And he gave the example that if somebody is going in the dark night and he saw, it's a dark night, saw the rope, but he thought it's a snake. And this guy got like sweating and he just runs away and goes somewhere, and there is a guy sitting with a lamp. And he says, the guy says, hey, why are you running away? He said, there is a snake there. He said, take the lamp and see, is it a snake or not? Then this guy asked him that, have you seen this with this lamp? There is a snake or rope? So the guy who has lamp, he said, when I go there with lamp, there is only rope, there is no snake. Because once you have the light, you cannot have two. You cannot have snake and rope both. As long as you are in darkness, you are projecting both. Because you are projecting, you are imposing snake on the rope. So there are two. But when the light comes, there is no two, there is only one. And that snake, that ignorance goes away. But he goes further, the Guruji who got. He said, in fact, the teaching is that even there is no rope also. Because the moment you say there's one rope, that means there is something else also. Just don't see anything. It is all good. So that is called Advaita. So, and that is what Bhagavan is trying to see, that Ajnanajam tama bhasvata jnana deepen nashyami. Nashyami ajnanajam. ये जितना ज्ञान है, इसको मैं ज्ञान दीप से, which is deep of vivek, I'll finish, and that is buddhi yoga. So we'll stop here and do our dhyan for a couple of minutes and continue next time
again a little bit this, and then the next time Bhagwan will start talking about the physical vibhuti. The whole chapter is like, जिसमें we saw in the beginning also that the definition of vibhuti, the vivid bhati bhavati iti vibhuti. Then he'll talk. So far Bhagwan has talked about internal. Now he's going to talk about the external, but at the end he'll combine. So yeah, let's do our ध्यान. इतना सब हमने भगवान का स्वरूप देखा है, उसके बाद ध्यान करने का एक आनंद ही अलग है. And that too with that sattva guni buddhi, right? So the again journey is from panch tattva outside world to inside, right? From Panchatattva to Atma, Sakshi Atma, Chaitanya Atma. So bring the focus to the tip of the nostril and think of Prithvi Tattva. Now shift focus to the tip of the tongue and think of Jal Tattva, which is the next element of Tattva. Tip of the tongue. Now bring the image of Jal in the mind and keep the focus on the eyes, which is Jal Tattva. Sorry, Agni Tattva. Jal was second. So bring the image of Agni, Surya Bhagwan, and keep the focus on eyes. Because with eye, which is one Gyanendri, we see the Agni Tattva, or we interact with Agni Tattva. Now shift focus to the skin and feel Vayu Tattva. We can feel Vayu. We cannot touch Vayu, we cannot see Vayu, but we can feel on our skin. So skin is the fourth Gyanendri, or sense of perception, and Vayu is the fourth element. Now shift focus to the ear and think of or bring Akash Tattva, which is the space. Space is around us, space is within us, but the sound travels in space, so we can hear sound through ear. So ear is a fifth element or fifth senses, which through we perceive the fifth element, which is space. Now Bhagavan says, while doing this, all the senses will shut down slowly. Then I am not these senses, I am not the mind, because mind is also quite I'm not the buddhi, which is again Rajoguni, Tamoguni buddhi, and not the intellect, because the buddhi and intellect, not the chit, which is the memory store. So not means they are all shutting down. I'm still there, but these are not going towards the world, they're coming inside. And then Bhagavan says, I am that Sakshi Chaitanya Atma. And then Bhagavan says, 6th chapter, that in this state where everything is quietened, do a Brahma Vichar. Bhava Samanvita, Visada, right? With that bhav, that prem, Preeti Purvakam. Do the Brahma Vichar, and Bhagavan's image we can bring in mind, or Omkar, or we can say some mantra, Om Namah Shivaya, anything, which is Nirgun, which is not particular shape, but the bhav, Preeti Purvakam. And Bhagavan says, Yukta Asit Matpara. In that state, just stay there as long as possible. And then you are with me, which Bhagavan ne bola, Upyanti Mam. Tu mujhe pahunch jayega. That means in this state, if we feel that there is Anand, there is a Tyaga, Shanti Anantaram. And that's it. That is Bhagavan's Upyanti Mam. अतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय.